are presenting today's assembly on the topic Power of Prayer. God is the supreme power who gave us a beautiful life. So let's begin this lovely day with a prayer song and Bible reading. धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। यह प्रभु की वाणी है। प्रार्थना। हे ईश्वर, सुबह सवेरे के सुंदर बेला में हम आपका नाम लेकर शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए, हम गुरुओं का आदर करें, सत्कार करें, ताकि हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। हे ईश्वर, आपने मुझे एक सुंदर नए दिन का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप कृपया करके मेरे शरीर और दिमाग को अपनी शक्ति दीजिए और मुझे आज के दिन का उद्देश्य प्रदान कीजिए। कृपया करके मेरे दिल में स्वच्छ और शुद्ध विचारों को भर दीजिए। मेरे मन को शुद्ध कर सभी के प्रति मेरे मन में दया और करुणा भर दीजिए। हे प्रभु, इस संस्था के हर एक सदस्य, प्रिंसिपल सिस्टर रोस्टोम, सिस्टर्स, टीचर्स, वर्कर्स, कंडक्टर, ड्राइवर व स्कूल के समस्त बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ताकि वे सब अपना आपका नाम लेते हुए अपने हर कार्य, हर जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सके तथा इस संस्था को आगे ले जा सके। आमीन। Talking to God is prayer. Sharing our pain and wishes with God, asking for help and mercy is also prayer. Prayer can work miracles. It can change everything and everybody. Let us listen and watch a story through a skit. Priya is the favorite child of her parents and teachers. She is a prayerful girl and has deep faith in God. She prays to God in the morning and before going to bed at night. Everyone liked Priya a lot. She did well in her studies and co-curricular activities. One day, Priya had severe stomach pain. Her mom gave her medicine and hot water to drink, but these were no effect. The pain did not subside. Her parents took her to the doctor. The doctor advised for surgery. The fees for the surgery was too much, and Priya's parents finding themselves helpless. The family together prayed to God for His mercy. They asked God for help Priya. Priya also prayed to God every day. Slowly her pain started subsiding. After a month, when she went to the doctor, he was surprised that Priya was totally fine and did not need any surgery. Priya and her parents were very happy.
Then Priya told the doctor that it was the power of prayer that held her. Her belief in God helped her to overcome pain and sickness. From the story, we learn that God answers our prayer. We have to trust God. We have to pray constantly. Thank you. Thanking God for the blessings we received and praising Him for His goodness is also prayer. Prayer is a loving conversation with God. It is the greatest wireless connection in the world. Let's experience God's mercy through a prayer dance. Good morning, teachers and my dear students. May God bless you. I am very proud of seeing the third C and third D classes under the guidance of Indumati Madam and Tania, and also Bharati Madam, Visa, Emma Madam, and all this, the Rati Madam, Sunil sir, all this support of our teachers. How nicely they performed the theme on the stage. They have conveyed a very good message. The power of the, what's the theme? Power of the prayer. For when the prayer should be successfully, we need, what do we need? We need trust. What we need? Trust. Then pray constantly. ईश्वर के ऊपर भरोसा होना है. Constantly. And first one we need trust in God and pray constantly. That means when we pray, some days immediately we won't get, but with the faith we should again pray. Then it will be provided. So through their dance and through their action song and through their message, through their speech, they have enacted the power of prayer very beautifully. I congratulate all the 30 and the third C and 30 classes. I request all of you give a one tremendous clap for the teachers and the students. सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदया, उपस्थित शिक्षक गण एवं प्यारे प्यारे विद्यार्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत सप्ताह हमारा विद्यालय प्रांगण हिंदी में रहा। क्या कारण आप जानते हैं? प्रार्थना सभा, शपथ, समाचार, यहाँ तक कि आदरणीय सिस्टर का आशीर्वचन भी हिंदी में ही रहे। क्या कोई मुझे बताएगा इसका क्या कारण था? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, हिंदी दिवस हमने गत सप्ताह मनाया था। और क्या मुझे बताएगा कोई कि हिंदी दिवस कब मनाया था? बहुत अच्छे। हिंदी भाषा के प्रति आपके प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। बहुत अच्छे। अब मुझे ये बताइए
कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? क्या कोई जानता है? हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 14 सितंबर 1949 को। पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो सभी लोगों के मन की भाषा हो, सभी लोग उसे बोलते हों, सुनते हों और उसकी भावनाओं को समझते हों। इसीलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, क्योंकि पूरे भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। आज भी लगभग 70%, 70% से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, समझते हैं और उसी में अपना कार्य करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इसलिए हम 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। आया समझ में? याद रहेगा? बहुत अच्छे। अब भाषा क्या होती है? हमारे मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त साधन है ना? हम अपने मन में जो सोचते हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो विचार करते हैं, उसको हम जिस भाषा में आरामदायक महसूस करते हैं उसी भाषा में बोलते हैं। हम जो कुछ भी विचार करते हैं अपनी ही भाषा में विचार करते हैं और उसी के द्वारा हम बोलते हैं। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे मन के भावों को पूर्णतया अभिव्यक्त करने में सक्षम हो। मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी भाषा अनुपयोगी है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और विश्व के देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी उतनी ही आवश्यक है। यदि हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो हम विश्व में लोगों से पिछड़ जाएंगे, है ना? लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि हम हिंदी भाषा का अपमान करें। हमें सदैव हिंदी भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। और आप हिंदी भाषा का सम्मान कैसे करेंगे? बहुत अच्छे। हिंदी को बोलकर ही नहीं, हिंदी को शुद्ध रूप में बोलकर, हिंदी को शुद्ध भाषा में लिखकर। आपके वर्ण, आपकी मात्राएं सदैव शुद्ध होनी चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे हिंदी लिखना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जब आप घर में हिंदी बोलते हैं, जब आपका घर का वातावरण हिंदी में है, जब आप सोचते हिंदी में हैं, तो आपको लिखना और पढ़ना क्यों पसंद नहीं? क्या ये अच्छी बात है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए हमें सदैव हिंदी का सम्मान करना ही चाहिए। हिंदी की बिंदी को मस्तक पर सजाए रखना, हिंदी की बिंदी को मस्तक पर सजाए रखना, सदैव हिंदी का सम्मान करना, उसी का गुणगान करना। तो बच्चों, हिंदी के प्रति आपके प्रेम को देखने के लिए आज हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न मंच आयोजित किया है, जिसमें आप सभी विद्यार्थी जो भी प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, यदि उसके उत्तर आप जानते हैं तो आप तुरंत दौड़कर यहाँ मंच पर आएंगे और अपना उत्तर बताएंगे। जो उत्तर सही होगा उन विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए सभी बच्चे बढ़ चढ़कर इस प्रश्न मंच में भाग लें। हमें आवेदन कर रही हूँ कि वे कक्षा 1 और 2 के विजयी विद्यार्थियों को के नाम यहाँ ले और आदरणीय सिस्टर महोदया उन्हें पुरस्कृत करें। हिंदी सुलेख प्रतियोगिता जो कि 22 जुलाई को आयोजित हुई थी और इसमें क्लास 1 में प्रथम पुरस्कार सौम्या सिंह, फर्स्ट सी नियाग्रा हाउस, जो कि आज अनुपस्थित हैं। सेकंड प्राइज जाता है कस्तूरी दास, फर्स्ट ए नियाग्रा हाउस, और तीसरा प्राइज जाता है अनाया परमार, फर्स्ट टी विक्टोरिया हाउस। क्लास 2 से फर्स्ट प्राइज रितिका चापड़ा, नियाग्रा हाउस, सेकेंड ए।
तृतीय पुरस्कार अर्चित गुर्जर, सेकंड सी, एंजल हाउस। थर्ड प्राइज ईशानी पाल, सेकंड बी, विक्टोरिया हाउस। क्लास 3rd to 5th के स्टूडेंट्स को ज्योति मैम नाम उनके पुकारेंगी, आप सुनिए। इसी श्रृंखला में कक्षा 3rd C से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है आहना सरकार, नियाग्रा हाउस। सेकंड प्राइज 3rd D से आलेख्य शुक्ला, नियाग्रा हाउस। थर्ड प्राइज 3rd B से दिव्यांश गुप्ता, विक्टोरिया हाउस। क्लास 4th से पहला पुरस्कार मिला है 4th C, आराध्या पटेल, नियाग्रा हाउस। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है 4th B से श्रेया ठाकुर, विक्टोरिया हाउस। और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है 4th B से अयाति शर्मा, नियाग्रा हाउस। कक्षा 5वीं से पहला पुरस्कार प्राप्त किया है 5th B से प्रणव पावड़े, विक्टोरिया हाउस। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है 5th D से यशवर्धन चौहान, विक्टोरिया हाउस। और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है 5th C से भव्या साहू, एंजल हाउस। पुरस्कार विजेताओं को बधाई।